प्लीज, काफी इंफॉर्मेटिव है। या सर प्लीज। और खूब खुश रहो, घर में 5 लोग 5-5 हजार रुपए कमाओ, मतलब मैकेनिक बन जाओ। मैं 3 बजे फ्री हूँ, आप इसको Okay, we have Dr. Manish Srivastava sir as an expert for this session. He is very instrumental in blending academic with research, and he is known for his innovations and patents and research work in the academics. And he is a guide and mentor for many research work. So we hope that you all who have joined this session enjoy and learn something, and hope this will be benefited for all. And I will welcome Manish Srivastava sir again, and I'll ask him to continue his session. And he is pioneer in the academics, and he is pioneer in research, and so many people will benefit from this session, and I hope so. And I will hand it over to the Manish Srivastava sir. He will continue further. Okay, thank you, sir. Thank you, Vipin sir. One thing I would like to know, who are audience, students or faculty? Or faculty, sir, faculty. Okay, very good. And some students are also involved. Those who are interested in research or some type of innovation activities will join. But the basic are the faculties. Right, sir, right. So after looking the beautiful video of your institution, I would going to start this session
और इसमें आई एम सपोज टू स्पीक ऑन और आई एम supposed to deliver the talk on entrepreneurship and innovation. So first I would take innovation. So innovation is the specific tool for entrepreneurs. Tool means which by which we can do something. That is what tool is. So this tool is used to exploit the changes. Basically, changes are happening day to day, and when we exploit these changes, this is what innovation is. So, tool to exploit the changes is what innovation is. So, innovation is tool, or entrepreneur is what? It exploits this tool to exploit the changes. This is the thing. So why we exploit change? To do different kind of business or different kind of service. This is the thing. So now we come to the changes. Ab changes, if we'll see the changes, किस तरह के changes होते हैं. तो nowadays we'll see clean India, eradication of the corruption. So in clean India, there are many opportunities. So entrepreneur is who exploit this clean India as a change. Secondly, we have seen corruption from very starting. So corruption could not be removed. Corruption can be eradicated with the transparency. So if we take example of railway reservation, before computerization of the railway reservation, there were corruption. We all are familiar. But after computerization of the railway reservation system, computerization happened and transparency came, and the corruption, suddenly corruption had removed. So this is the thing. So well, आगे देखें यदि changes की बात करें तो cell tax to GST, this is the change. So there are two kinds of people. One who oppose the changes, or another other way around, the people who looks for the changes. Not only use the changes, they look every time they look for the change. So these people have made software for GST calculation, and this is the thing. So this is what innovation is. An entrepreneur uses this innovative tool to start new service or new business. This is the thing. So in this series, demonetization is also used by the e-payment companies. We are familiar this thing also. So in last few months, we also have seen online education is also as an example of this thing, exploit changes. So I said there are two kinds of people. One opposes the changes and one look for the changes. So those who look for the changes, we can understand, they innovate the thing, and innovation is the tool of the entrepreneurs. This is the thing. So now अब आगे यदि इसमें आगे चलते हैं अपन, यदि तो एक तो तरीका होता है एक्सप्लॉइट चेंजेस की, अपन चेंजेस को एक्सप्लॉइट करें. दूसरा तरीका होता है इनोवेशन का, जो एक सिस्टमेटिक तरीका है, जो है बुकिश वे है कि आइडिया, देयर हैज टू बी आइडिया. तो अब आपके पास आइडिया के लिए यू हैव टू ओपन योर आई, यू हैव टू ओपन योर ईयर एंड माइंड ऑल द टाइम. Then many ideas will come to your mind. This is the thing. So first idea comes, then if you execute that idea, it is called implementation of the idea. If you implement the idea, this is called invention. But invention is not innovation. When you bring that invention commercialize in market, your idea will become the innovation. It produces the impact and it becomes the innovation.
So what is that? I am repeating this thing. First we have to have idea. So आइडिया होगा, उसके बाद अपने पास उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिसको अपन एग्जीक्यूशन ऑफ आइडिया कहेंगे। और इस एग्जीक्यूशन ऑफ आइडिया के बाद जो है आप इस दोनों चीजों को कंबाइन करें तो अपन इसको इन्वेंशन कहते हैं। लेकिन इन्वेंशन जो होता है, ये जब आप इसको कॉमर्शियलाइज करते हैं, इनको आप मार्केट में लाते हैं, तब ये इन्वेंशन जो है इनोवेशन बनता है। और बिफोर इनोवेशन, इनोवेशन बनने से पहले इसका इम्पैक्ट आता है। तो इम्पैक्ट आता है, उसके बाद ये इनोवेशन बनता है। दिस इज द थिंग। अब इम्पैक्ट से क्या समझें, तो इम्पैक्ट देखने के लिए दो तरह के चीजें होती हैं, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो फर्स्ट विल सी द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होता है कि उसका मार्केट शेयर बढ़ता है, उसका प्रोडक्ट की प्राइसेस डाउन होती हैं, और ये भी हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस उनकी इम्प्रूव हो जाए। तो इस तरह के इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट यदि देखें अपन, इंक्रीज्ड प्रॉफिट इंक्रीज होता है उनका, तो ये सभी चीजें होती हैं। यदि अपन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखें लाइक अस, तो अपने इसमें नाउ-ए-डेज अपन देखते हैं कि अगर कोई अपन इनोवेटिव तरीका अपनाते हैं तो अपने एडमिशन्स इंक्रीज होते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट आता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ती है, और भी कई चीज़ें हैं। तो कई नए कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी आती है जिनको अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन ने ये देखा कि सबसे पहले आइडिया होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है आइडिया की। इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद इस दोनों को कंबाइन करके अपन इसको इन्वेंशन कहते हैं। और इन्वेंशन को अगर आप कॉमर्शियलाइज करें तो इसका इम्पैक्ट आता है। तो इम्पैक्ट आने के लिए दो, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि क्या नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और कैसी इम्पैक्ट आएगी। तो इम्पैक्ट आने के बाद ही वो इनोवेशन कहलाता है। तो अगर अपन कहें कि इनोवेशन जो है इन्वेंशन है, तो ऐसा नहीं है। इन्वेंशन जो होता है, आप यदि देखें, अपन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर इन्वेंशन की बात करें तो अपने पास कई एमटेक और पीएचडी एमबीए सबके डिसर्टेशंस होते हैं। तो वो भी इन्वेंशन ही होते हैं, एक तरह के कंसेप्ट होते हैं। तो वो बुक में रहते हैं, वो डिसर्टेशन में रहते हैं, वो रिपोर्ट में रहते हैं। अगर सम ऑफ यू कैन bring out those innovation or those invention in the market और उसका इम्पैक्ट आता है, तो वो इन्वेंशन तो इनोवेशन बन पाते हैं। सो दिस इज द थिंग। तो अब ये सब चीजें अपन ने देखी कि किस तरह से इन्वेंशन होता है और किस तरह से इसके आगे अपन अगर देखें तो आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन, ये इन्वेंशन था। तो ये चीज अपन ने देखी। अब इट इज क्वाइट पॉसिबल, अब ये पॉसिबल है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इन्वेंशन है वो किससे बने, आइडिया से बने और उसके इम्प्लीमेंटेशन से बने। लेकिन अपन ने आइडिया को कहाँ इम्प्लीमेंट किया, एक कंट्रोल्ड वे में इम्प्लीमेंट किया। कहाँ पे किया, लेबोरेटरी में किया होगा, हो सकता है किसी सिमुलेशन टूल का यूज करके इम्प्लीमेंट किया होगा। तो अब ये आइडिया इम्प्लीमेंट तो हो गया, इन्वेंशन भी बन गया, लेकिन ये मार्केट में नहीं आया, ये डिसर्टेशन में रहा। तो ऐसा पॉसिबल होता है। तो यही चीज है। अब अपन इसी सीरीज में यदि आगे चलें तो ये कह सकते हैं कि ये मार्केट का पार्ट नहीं बना इन्वेंशन, इसलिए ये इनोवेशन नहीं है। तो आई बिलीव अभी तक जो एट दिस जंक्चर ऑफ दिस टॉक ये क्लियर हो गया, टर्म्स क्लियर हो गई कि आइडिया क्या होता है, आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है और इम्पैक्ट क्या होता है उससे पहले। तो ये चीजें क्लियर हो गई आई बिलीव। तो अब ये भी अपन ने समझ लिया कि दो तरह से अपन एंटरप्रेनर जो होता है वो चीज़ों को यूज़ करता है। पहला तरीका होता है वो चेंजेस को एक्सप्लॉइट करता है, जो चेंजेस डे टू डे आते रहते हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है, और वो कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया सर्विस, नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस लेके आता है।
या दूसरा तरीका ये होता है कि वो अपना जो एक ट्रेडिशनल तरीका है कि आइडिया ले लिया उसने, आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करके उसने दोनों को कंबाइन किया तो इन्वेंशन बना, इन्वेंशन को मार्केट में लाया तो इम्पैक्ट आया, इम्पैक्ट अगर आया तो फिर वो इस तरह से इनोवेशन हुआ। अब ये एक चीज है। अब अपन रियलिटी समझे इनोवेशन की, तो रियलिटी ये है कि ये जो है, कई लोग कहते हैं इनोवेशन क्रिएटिविटी से आता है, तो ऐसा नहीं है। इनोवेशन, और कई फिर कहते हैं कि हम क्रिएटिव नहीं है तो हम इनोवेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इनोवेशन जो है आता है क्यूरियोसिटी से। अगर आप क्यूरियोसिटी है, आप बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, किड होता है जो आपसे पूछता रहता है क्वेश्चन, बच्चा होता है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास इस तरह का माइंडसेट है तो आप क्यूरियोसिटी है आपके पास, तो आप क्यूरियोसिटी है आपके पास, तो आपके पास इससे बहुत सारे आइडिया आएंगे। तो जब आपके पास आइडिया आएंगे तो उन आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास कोई इन्वेंशन बनेगा, इसको कंबाइन करके एक इन्वेंशन किया। अब ये चीज होती है कि इन्वेंशन बनने के बाद आप उसको मार्केट में लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है, फिर वो इनोवेशन बनता है। तो अब ये चीज होती है कि आइडिया जो है, दूसरे इसके आगे अपन चलें तो ये तो मैंने एक चीज क्लियर कर दी कि रादर देन क्रिएटिविटी यू मस्ट हैव क्यूरियोसिटी, दिस इज द थिंग। अब इसमें आगे देखें तो अपने पास जैसे जो है आइडिया होता है, तो ये फिर अपन ने, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद वो इन्वेंशन बन जाता है, इन्वेंशन से आप मार्केट में ले जाते हैं, उसको कॉमर्शलाइज करते हैं तो इम्पैक्ट आता है, इम्पैक्ट आने के बाद वो इनोवेशन बनता है। तो देखिए ये कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आइडिया है उसको आपने इम्प्लीमेंट किया और ये एक लूप में चलेगा, फिर से आपका इम्प्लीमेंटेशन, आपका आप फीडबैक लेंगे, फिर आप इसको फिर से आइडिया पे आएंगे, आइडिया को मॉडिफाई करेंगे, फाइनली आप जो है इम्प्लीमेंटेशन पे पहुंचे, इम्पैक्ट आएगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद, इम्पैक्ट के बाद भी आप हो सकता है वापस आए इम्प्लीमेंटेशन पे, या वापस आप आइडिया पे भी आए, ये भी हो सकता है। सो इट्स ए इटरेटिव प्रोसेस, दिस इज द थिंग। तो अब इसके बाद अगर आगे चलें तो जो एंटरप्रेन्योर होता है या जो इनोवेशन आप समझते हैं, ये एक रिस्क होती है इसमें। तो जो है रिस्क होती है, लेकिन मैं समझता हूँ एक मॉडरेट रिस्क होती है। अब जैसे आप किसी हिली एरिया में चढ़ते हैं तो ये एक रिस्क होती है, आप वहाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन आप मिटिगेटिंग मेजर के साथ आप जाते हैं हिली एरिया में, तो आप उसको क्रॉस कर पाते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे रिस्क किस तरह से होती है कि जो एंटरप्रेनर होता है वो रिस्क को मिनिमाइज करता है। सो बेसिकली एंटरप्रेनर जो होता है एक बिजनेस को में सेंट्रल रोल, बिजनेस मॉडल में सेंट्रल रोल प्ले करता है। वो उस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, उस बिजनेस को मैनेज करता है, तो ये चीज होती है। और रिस्क टेकर होता है, ऑब्वियसली रिस्क रहती है, लेकिन रिस्क को वो मिनिमाइज करता है, रिस्क को वो इन कैपेसिलेट करता है, कैपेसिलेट करता है। तो ये चीज है। तो अब ये हो गया कि एंटरप्रेनर जो है, आप ये समझें कि एंटरप्रेनर क्या होता है, तो ये आप नट शेल में समझ लें। तो एंटरप्रेनर जो है ऑर्गेनाइज करता है बिजनेस मॉडल को, मैनेज करता है उस बिजनेस मॉडल को, या ऑर्गेनाइज करते करते मैनेज करता है, या ऑर्गेनाइज करने के बाद मैनेज करता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे यह है कि वो क्या क्या ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका एंटरप्रेनर को अगर आप समझें तो अगर वो एक आप समझें ऑर्गेनाइज ए स्मॉल पार्टी, if we organize a small party, तो यहाँ पे क्या होता है कि who would come, when would come, where they would sit. So there are so many things we have to consider or we have to taken into account. This is the thing. So when you organize a business, when you manage a business, it's a huge task. तब यहाँ पे क्या है, आपके पास कौन लोग होते हैं, आपके पास एसोसिएट्स होते हैं, आपके पीपल होते हैं, जिन और आपके पास प्रोसेस होती हैं, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं. सो यू हैव टू मैनेज दीज थिंग्स नॉट इन सीक्वेंस, sometimes in sequence, sometimes you have to manage these things. तो बेसिकली एंटरप्रेनर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम टू टाइम डिलीवर करता रहता है. किसको? अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं, अपने एसोसिएट होते हैं, अपने पीपल होते हैं, उनको डिलीवर करता रहता है.
या अदर वे राउंड ऐसा समझें कि अगर उसके सपोर्ट, ये जो सपोर्ट टीम है ये अगर बेहतर होती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद समझ पाती है। तो अदर वे राउंड भी इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को वो मिलता है अगर वो फॉर्चुनेट होता है। तो इस तरह की चीज है। अब अपन आते हैं कि ये सब तो हो गया कि अपने पास एक इनोवेशन आ गया। अब ये इनोवेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास आइडिया नया है और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो ये जो क्या चीज हो सकती है, ये चीज ऐसी हो सकती है कि एक नया आपके पास प्रोडक्ट आ गया या नई एक सर्विस आ गई या नई एक प्रोसेस आ गई। अब जब ये नया आ गया तो आप क्या है, आपकी कोई भी चीज कॉपी करने लगेगा। तो इसको आपको अपने इनोवेशन को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इनोवेशन हैज टू बी प्रोटेक्टेड, भाई प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो कॉपी करेगा कोई। तो ये दो चीजें हैं, इनको समझें। बल्कि तीसरी चीज भी हो सकती है। पहली चीज ये हो सकती है कि आपका आइडिया नया है, इम्प्लीमेंटेशन पुराना है। ये भी हो सकता है आपका आइडिया पुराना है और इम्प्लीमेंटेशन नया हो गया। जैसे वी हैव गॉट द फ्रीडम, तो किस तरह से फ्रीडम मिली? फ्रीडम मिली नॉन वायलेंस पे। तो नॉन वायलेंस का जो आइडिया है ये तो बहुत पुराना आइडिया है, लेकिन अपना इम्प्लीमेंटेशन नया था कि अपन ने इस नॉन वायलेंस के आइडिया को फ्रीडम में यूज किया, टू गेट द फ्रीडम यूज किया। तो ये एक चीज है। तो आइडिया पुराना है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नया हुआ। यह भी हो सकता है आइडिया भी नया हो, इम्प्लीमेंटेशन भी नया हो। तो अब ये सभी किसी भी तरह से अगर आपके पास नॉवेल इनोवेशन आ जाता है, तो नॉवेल इनोवेशन आ जाता है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इनोवेशन ही आगे चल के आपका एक एसेट बन जाता है, आपका बिजनेस एसेट बन जाता है। तो वो जब बिजनेस एसेट बनता है तो बिजनेस एसेट को आपको, बिजनेस एसेट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू asset, your asset, or business asset. Moreover, it is intellectual asset. If it has novelty, it is intellectual asset. So intellectual asset has to be converted into intellectual property. तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है, जिससे अपन अपने जो इनोवेशन होता है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इंटेलेक्चुअल एसेट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्चुनेटली जितना मैं आपके ग्रुप को जानता हूं तो आपका ग्रुप बहुत फॉर्चुनेट है, जिसके पास जो है दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी है, रियल प्रॉपर्टी भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है। तो जो रियल प्रॉपर्टी है उसमें राइट्स होते हैं भाई। अगर आपने कोई पीस ऑफ लैंड ले लिया तो आपके पास राइट्स मिल जाते हैं आपको, कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करके सेल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करके स्वयं उसमें निवास कर सकते हैं, आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो ये सब रियल प्रॉपर्टी, इसको अपन कहते हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल माने उसको टच कर सकते हैं अपन। और जो होती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको अपन टच नहीं कर सकते, बट इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसमें भी इसी तरह के राइट्स मिलते हैं आपको। मोर ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको जो राइट होते हैं वो एक्सक्लूसिव राइट होते हैं। अब कौन से राइट मिलते हैं ये यदि समझे तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यदि कोई प्रोडक्ट होती है, प्रोसेस होती है, जो आपका एसेट है कंपनी का, उसकी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने बना ली। कैसे बना ली? आपने उसके लिए अप्लाई किया, उसका जो है पेटेंट ग्रांट किया। तो अब इस तरह से आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना दी। तो आपका जो इनोवेशन था, अगर वो नॉवेल है, नॉवेल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेटेंट कराने के 3 मेन कंडीशन होती है। पहली होती है नॉवेल्टी, दूसरी होती है अनऑब्वियसनेस। अनऑब्वियसनेस मीन्स होता है कि जो प्रोडक्ट है उसमें कोई इंक्रीमेंटल चेंज करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो पेटेंटेबल नहीं होता। तीसरी चीज होती है बेनिफिट टू द सोसाइटी, जिसको अपन यूजफुलनेस कहते हैं। तो अब इस तरह से आपने क्या किया, क्या कि आपने अगर नोवेल समहाउ, आपने अगर एंटरप्रेनर हैं आपने कोई नोवेल प्रोडक्ट बना दिया, नोवेल प्रोसेस बना दी, नोवेल सर्विस बना दी नहीं, तो उसको आप जो है उसको आप पेटेंट करा सकते हैं। तो अब ये जो है पेटेंट कराते हैं तो आपको जो राइट, मतलब आपकी जो इनोवेशन है वो क्या हो गया, वो हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो आपको राइट मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का राइट होता है,
सेल करने का राइट होता है, उसको मैन्युफैक्चर करके, उसको एरिया होता है आपका पेटेंट का। अगर आपने इंडिया में पेटेंट फाइल करा है तो आप इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अपने आप प्रोडक्ट के लिए आप अपने डीलर बना सकते हैं, उनको लाइसेंस दे सकते हैं मार्केट करने के लिए, सेल करने के लिए। इवन मैन्युफैक्चर के लिए भी आप उसको राइट दे सकते हैं, तो आपको रॉयल्टी देता रहेगा। तो ये सब चीजें संभव होती हैं। लेकिन आपने जहां पेटेंट अप्लाई किया है उसी कंट्री में आपको राइट्स मिलते हैं। अगर आपको दूसरी कंट्री में सेल करना है अपने प्रोडक्ट को, तो मैन्युफैक्चर करना है, तो वहाँ उनके पेटेंट कराने पड़ेंगे, तब आपको राइट्स मिलेंगे। आप बिना पेटेंट कराए भी उस कंट्री में बेच सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ मोनोपोली नहीं मिलेगी उस कंट्री में। तो ये चीज़ है, ये होता है पेटेंट, जिससे आप पेटेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है एक्सक्लूसिव राइट देता है। एक्सक्लूसिव राइट से मतलब है कि अगर मेरे पास पेटेंट है तो मैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो दूसरा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव राइट है। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ पेटेंट, इट प्रोवाइड्स मोनोपोली टू योर एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप जो करते हैं उनके लिए करता है। तो अब एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पेटेंट हो गया या आईपीआर हो गया, इसको कोई इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग। पीपल्स आर यूजिंग इंटरचेंजेबली पेटेंट एंड आईपीआर। आईपीआर जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, पेटेंट भी राइट्स होता है, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो पेटेंट इज वन ऑफ द intellectual property. Patent is not intellectual property. Patent is a intellectual property, but it is a type, one of the type of intellectual property. तो कौन कौन से टाइप होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भाई, जिससे क्या है कि कोई ये ना हो कि पेटेंट कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोनों को एक ही चीज समझे। तो पेटेंट, आईपीआर इज ए बिगर टर्म, इसमें पेटेंट भी आता है, इसमें कॉपीराइट भी आता है, इसमें ट्रेडमार्क आता है, सर्विस मार्क आता है, ट्रेड सीक्रेट आता है, इसका ज्योग्राफिकल इंडेक्स आता है, और जो इंडिकेटर आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आता है, डिज़ाइन आती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आती है, और लेआउट भी आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, पीसीबी होते हैं, लेआउट को भी अपन रजिस्टर कर सकते हैं, और ट्रेड सीक्रेट आता है। तो ये सब चीजें हैं। देखिए, एंटरप्रेनरशिप पढ़ने के लिए या हु इज एंटरप्रेनर समझने के लिए या व्हाट इज इनोवेशन समझने के लिए, अल्टीमेटली आपको जाके अपने बिजनेस को और जो प्रोडक्ट हैं वो या प्रोसेस है या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। So this is the thing I am going to mention, I have mentioned or I am going to mention this thing in this expert talk. अब देखें अपन की ये क्या होता है, वन बाय वन देखें तो पेटेंट तो सबसे फेमस आईपीआर है, जिसको काफ़ी लोग जानते भी हैं। और पेटेंट की बात करें तो जो पीएसयू है अपना, बीएचईएल जो है, ये काफ़ी, अब पेटेंट से फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे समझा जाता है कि कौन सी कंपनी इनोवेटिव है, अब कौन इनोवेशन करता है, तो ये क्या पैरामीटर है, अब कैसे पता चलेगा। तो ये इसी से, मोर ओवर कौन नए इनोवेशन करता है, तो अब ये कैसे समझा जाएगा, ये इसी से समझा जाता है कि किस कंपनी में किस ईयर में कौन कौन से कितने पेटेंट फाइल करे, कितने पब्लिश करे और कितने पेटेंट ग्रांट हुए, तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें बीएचईएल काफी आगे है पीएसयूज में, और बाकी आप जो ये सब कंपनी देखते हैं जो नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो नेशनल कंपनी की बात करें तो टाटा है, जिसने कि टाटा नैनो पर कई पेटेंट फाइल किए थे, और सैमसंग हो गए, एप्पल हो गए, तो ये तो आपस में इनकी फाइट चलती रहती है कि जो है ये एक दूसरे की चीज़ें कॉपी करते हैं। तो इसी वजह से इनको इंटेलेक्चुअल जो अपने प्रोडक्ट हैं इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और सिर्फ एक ही कंट्री में प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ता, जहाँ जहाँ ये दोनों कंपनी बिजनेस करती हैं हर जगह इनको अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करना पड़ता है, क्योंकि इन कंपनी को चाहिए मोनोपोली। मोनोपोली से इनका जो है कंपटीशन कम होता है, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा के दे सकते हैं, ये है। अब अपन देखें इसी सीरीज में तो कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट की बात करें तो ये अपने लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आईटी से जुड़े लोग हैं।
जनरली जो है अपन बात करें अगर IoT जो ये IT से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वॉल्वमेंट समटाइम्स नहीं होता, वो टोटल सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका पेटेंट होना डिफिकल्ट हो जाता है कि सॉफ्टवेयर का पेटेंट जो है होता नहीं है अपनी कंट्री में, और सॉफ्टवेयर का जो है कॉपीराइट होता है। तो आप देखें यदि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं तो यू हैव टू बाय द लाइसेंस ऑफ दोस सॉफ्टवेयर। इफ यू कुड नॉट बाय, यू आर यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो है कॉपीराइट होता है सॉफ्टवेयर का, म्यूजिक का कॉपीराइट होता है, जो लिटरेरी वर्क होता है, बुक राइटिंग होता है, तो ये सब जो है कॉपीराइट होते हैं। अब यदि आईडीए को समझें तो आईडीए का, अगर आप आइडिया का एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडिया को, तो वो कॉपीराइट आईपीआर में जाता है। यदि आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं तब वो पेटेंट में जाता है। तो ये एक पॉइंट समझने का है। अब इसके बाद अपन देखें जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है, क्योंकि सभी लोग पेटेंट को आईपीआर समझते हैं, इसलिए आई वुड लाइक टू क्लियर दिस थिंग्स। तो ज्योग्राफिकल इंडेक्स या इंडिकेटर जो होता है ये क्या होता है, इसको समझिए। जैसे अब जो है रसगुल्ला होता है, वैसे तो आप देखेंगे ये पूरी जो है इंडिया में या इंडिया से बाहर भी वर्ल्ड में आप कहीं जाएंगे, यूएसए में, तो यू विल गेट द रसगुल्ला इफ यू वुड लाइक टू ईट। तो ये है। अब ये जो रसगुल्ला है ये इससे फायदा क्या हो रहा है, इसका ज्योग्राफी से क्या कनेक्ट है, तो यह है कि एक डिस्प्यूट हुआ था अपनी कंट्री में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में कि भाई ये जो रसगुल्ला है, उन्होंने कहा ये हमारा है, उड़ीसा ने कहा कि रसगुल्ला हमारा है। फाइनली ये डिस्प्यूट जो है कोर्ट में जाके सॉल्व हुआ और अल्टीमेटली जो वेस्ट बंगाल जो है इसको जीत पाया। तो यहाँ पे इनको जो है वेस्ट बंगाल को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिल गया रसगुल्ले पे। अब ये मिलता किसको, ये किसी इंडिविजुअल को मिलता है? नहीं मिलता। ये उस ज्योग्राफी के जो वेंडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, जो कि रसगुल्ले में डील करते हैं, उनकी एक एसोसिएशन होता है जिसको ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिलता है। अब यदि पेटेंट की बात करें तो पेटेंट इंडिविजुअल को भी मिलता है, ग्रुप ऑफ पीपल को भी मिलता है और कंपनी को भी मिलता है, ये है। बट ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता, किसी कंपनी को नहीं मिलता, बल्कि एसोसिएशन को मिलता है जो उस बिजनेस को करते हैं या उस सोसाइटी को मिलता है। तो आप देखें इस तरह ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से कई फायदे होते हैं कि भाई आपको कोई बताएगा ये रसगुल्ला अगर वेस्ट बंगाल का है तो आप उसको खाएंगे, इंटरेस्ट से खाएंगे। और इसी तरह बनारसी साड़ी होती हैं, ये इसका भी बनारस से रिलेशन है, और नागपुरी संतरे होते हैं, दार्जिलिंग टी होती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनसे बिजनेस को प्रमोशन मिलता है, एक तरह की प्रोटेक्शन मिलती है, मोनोपोली मिलती है। अब अपन आगे देखें तो इसी तरह से अपने पास ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? तो ट्रेडमार्क जो होता है, देखिए ये टोटल इनोवेशन जो है बिजनेस से रिलेटेड है। अगर इम्पैक्ट नहीं है आपके पास तो आपका इनोवेशन किसी काम का नहीं है। इम्पैक्ट मैंने बताई दिया आपको, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो इम्पैक्ट क्या होगा? शेयर मार्केट शेयर होगा, या आपको जो है कॉस्ट रिड्यूस हो गई प्रोडक्ट की, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये सब होते हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, इसके अलग इम्पैक्ट होते हैं। तो मेनली यह है कि इनोवेशन जो होता है, कोई भी इनोवेशन होता है, वो आज के समय में पैशन से नहीं चलता। अगर आपका कोई पैशन है और आप वो काम करते हैं तो उस पैशन से आपको जो है हमेशा, जरूरी नहीं है कि पैशन आपका सेलेबल भी हो। तो अगर आपका पैशनेट आइडिया है, जरूरी नहीं है वो सेलेबल हो। अगर आप पैशन के साथ चलेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे, आपको चाहिए सेलेबल आइडिया। जो सेलेबल आइडिया होगा वो इनोवेशन में कन्वर्ट होगा। तो ये एक चीज अपन अच्छे से समझ लें कि अपने को जो काम किस पे करना है, मार्केट पे करना है। अगर अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को, अपने प्रोसेस को अगर मार्केट में जगह मिलती है तो वो इनोवेशन कहलाता है, नहीं तो वो इनोवेशन नहीं कहलाता। वो आपका एक पैशन है जिससे कुछ वो आप, बल्कि उसको आप ये समझ सकते हैं इट्स ए सोशल सर्विस। सो दिस इज द थिंग। तो अब अपन देख रहे थे ट्रेडमार्क क्या होता है।
तो ट्रेडमार्क को अगर समझें तो ट्रेडमार्क भी आपके लिए जरूरी है, कंपनी के लिए, जो है एंटरप्रेनर के लिए क्यों जरूरी है भाई? Manish sir, sorry to interrupt you. We have only 1 minute remaining, and in this 1 minute we want to share a appreciation certificate to you. So we have to stop here, sir. And we will hope that some other time you will join again with us. No issue, sir. I expect that we are having 1 hour, so okay, sir. This is the certificate for your delivering the lecture. This is the certificate for appreciation. We will send it to by your mail, and please, sir, accept this certificate, sir. Okay. So, Vipin, sir. Okay, sir. If someone would like to ask something to me. Yes, please, somebody from the audience ask. Ji, Indrakant sir. Sir, I have one question. What exactly the difference between a businessman and a entrepreneur? मीन्स कौन सी ऐसी एक चीज है जो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को अलग अलग कर